Dear students, Assalamu alaikum and very warm welcome to all on online class organized by Metropolitan School. I am your teacher for chemistry of class 9th. Now, chemical reaction is the next topic of chapter number 2. What is the definition of the chemical reaction? A chemical change in which reactants are converted into products is called chemical reaction. In chemical reaction, chemical change occurs which is generally observed with physical changes like precipitation, heat production, color changes, and etc. For example, zinc react with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen. Now, what are the importance of the chemical reaction? In our daily life, there is a lot of importance of chemical reactions. As you know, the photosynthesis. What is the photosynthesis? It is the process to manufacture the food of plants. इसमें भी एक chemical reaction होता है and what is that chemical reaction? Carbon dioxide reacts with water to form glucose and oxygen gas. इसी के साथ साथ decay of animals and plants. What is this? Even after plants and animals die, the decay of their remains involves chemical reaction. Except this, many substances are made by chemical reaction that takes place naturally, such as oxygen in the air, which is made by vitamins, photosynthesis process, and many more. Now, here are some types of chemical reactions. What are these types? Chemical reaction can be divided commonly into 5 different types. Number 1, decomposition reaction. Number 2, addition reaction or combination reaction. Number 3, single displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. And number 5, combustion reaction. Now, we learn all these types of chemical reaction one by one. Now start from first type of chemical reaction, the decomposition reaction. The chemical reaction in which a single compound break into 2 or more simpler products is called decomposition reaction. These products may be any combination of elements and compound. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिंगल कंपाउंड यानी एक कंपाउंड टूटता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में. The best example of this is calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide in the presence of heat. अब इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इसी के साथ साथ पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 2 simpler substances, potassium chloride and oxygen gas. These are the simpler chemical reaction and is known as decomposition reaction. Same as hydrogen peroxide reacts to form water and oxygen. It's the simplest form of chemical reaction in which a single compounds break into 2 or more simpler products. Now move toward the second type of chemical reaction, that is addition or combination reaction. In this reaction, a reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance is called an addition or combination reaction. This reaction are the reverse of decomposition reaction. अगर आपको decomposition reaction समझ में आ जाएगा तो addition reaction उसका reverse है.
The example is same. Calcium oxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम एनर्जी दे रहे थे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट्स दे रहा था. अब यहां पर क्या है, एडिशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स, यानी हमारे पास जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स थे वो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और वो रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमें क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट. देन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस and it gives a new substance called common salt. हमारे पास जो घरों में सॉल्ट यूज होता है that is known as common salt और सोडियम क्लोराइड. सोडियम रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ तो हमें सोडियम क्लोराइड मिल रहा है. इसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट. Now move toward the third type of chemical reaction, that is single displacement or replacement reaction. A reaction in which one atom or group of atoms of a compound is replaced by another atom or group of atoms is defined as displacement reaction. Some metals are react with acid bases or even water to displace hydrogen gas. What is single replacement or displacement reaction? इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से एक कंपाउंड का प्रोडक्ट किसी एक कंपाउंड का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है, बट सिंगल रिप्लेसमेंट, यानी एक एटम या एक आपका जो कंपाउंड का एटम है वो रिप्लेस होता है किसी भी दूसरे कंपाउंड से जो आप रिएक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जिंक रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव जिंक क्लोराइड. जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो क्या मिल रहा है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. इसी की तरह से सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. एज यू नो वाटर H और OH की फॉर्म में मिलकर बनता है, तो जब ये सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड में से एक एटम रिप्लेस हो जाता है दूसरे एटम के साथ जो रिएक्ट कर रहा है. दिस इज नोन एज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसकी डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है क्योंकि मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद द एसिड्स और बेसिस से, और इवन वाटर के साथ भी. यानी ये तीन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके साथ मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. नाउ मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब सेम वही बात, अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है. नाउ वी आर मूव टुवर्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. It is a reaction in which two compounds exchange their partners so that two new compounds are formed. In double displacement reaction, usually there is an exchange of ionic radicals. Now, what is ionic radicals? Positive and negatively charged atom. कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर दो कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद है, तो वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और दो नए कंपाउंड्स बना लेंगे. इसकी मेन एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट. अगर हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो दे एक्सचेंज देयर पार्टनर्स टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स. यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे तो सोडियम के साथ जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रेट के साथ. यानी सोडियम रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रेट के साथ और सिल्वर रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. नाउ वी आर मूव टुवर्ड अनदर एग्जांपल which is
calcium chloride is react with sodium carbonate to form new compound sodium chloride and calcium carbonate. Now the best example is neutralization. What is neutralization? The acids and base reacts with each other to form salt and water. This is the process of acid and base reacts with each other to form salt and water. एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ वी आर मूव टुवर्ड द लास्ट टाइप ऑफ कंबस्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कंबस्शन रिएक्शन. नाउ व्हाट इज कंबस्शन रिएक्शन? A reaction in which substances react with either free oxygen or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction. The main characteristic of combustion reaction is flame. अब combustion reaction में क्या हो रहा है? When methane gas burns in air, it forms carbon dioxide gas and water, and also heat evolved. Now when carbon burns in air, it produces carbon dioxide gas and heat. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोकार्बन मोस्टली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन गैस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करते हैं. इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं. कंबस्शन रिएक्शन में फ्लेम इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे रियलाइज होता है कि ये कंबस्शन रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है. ज्यादातर कंबस्शन रिएक्शन हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो रहे होते हैं. इसी तरह से केमिकल इक्वेशन बहुत अहमियत और इंपॉर्टेंस रखती है. केमिकल इक्वेशन होता क्या है? It is the shorthand method of describing the chemical reaction in terms of symbols and formula of the substances involved in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में जो दो चीज़ें या एक चीज़ react कर रही होती हैं और कोई नई प्रोडक्ट जो केमिकली रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होती है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, जो सिंबल और फॉर्मूले की मदद से बनाई जाती है. द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इक्वेशन इज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड कोफिशिएंट. नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट? The substances which take part in the chemical reaction are called reactant. किसी भी chemical equation में जो reaction initiate किया जा रहा है जिन chemical substances से, उनको हम reactants कहते हैं और ये हमेशा left hand side पे लिखे जाते हैं किसी भी chemical equation में. इसी के साथ साथ products क्या होती हैं? उन रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, जो केमिकल्स मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट्स. अब द न्यू टर्म हियर, कोफिशिएंट, द नंबर इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इन अ केमिकल रिएक्शन. आप यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं जिसमें 2H2 प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. अब यहां पर आपको दो चीजें और नजर आ रही हैं, एक प्लस का साइन और एक एरो का साइन. केमिकल इक्वेशन में ये चीजें भी मस्ट होती हैं.
फॉर्मूला और सिंबल्स, ये सारी चीजें एक केमिकल इक्वेशन को पूरा बनाती हैं। अब केमिकल इक्वेशन में बेसिकली कोफिशिएंट्स क्या चीज हैं? अब यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ, तो क्या बन रहा है? 2 एटम वाटर। अब यहां पर क्या बात आ रही है, अगर खाली H2 और O2 को रिएक्ट करवाएंगे तो H2O बन रहा है। अब जब H2O बन रहा है तो ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म में है, जबकि यहां ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना चुका है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 1 रह गया, जबकि रिएक्टेंट में कितना है? 2 है। तो यहां पर केमिकल इक्वेशंस जो है वो कुछ बैलेंस में नहीं रहती, तो इसीलिए हम यहां पर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी पढ़ेंगे, जिसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करके प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं। नाउ व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ chemical equation? A chemical equation is a written symbolic representation of a chemical reaction. वही बात कि symbolic यानी symbols की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में उसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन है एक chemical reaction. Then the reactant are given on the left hand side and the product on the right hand side. हमेशा कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी उसमें रिएक्टेंट यानी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल्स, वो हमेशा प्रोडक्ट्स, वो हमेशा रिएक्टेंट्स में लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। एंड देन राइट हैंड साइड पे कौन से केमिकल्स आते हैं? जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी उन दोनों या एक केमिकल का एक केमिकल का रिजल्ट जो प्रोडक्ट कहलाता है। Now what steps are involved in balancing of chemical equation? The first step in balancing a chemical equation is to identify your reactants and your product. सबसे पहले आप एक इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर हमने एग्जाम्पल ली है आयरन और ऑक्सीजन की, जो रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। अब आयरन और ऑक्सीजन यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? रिएक्टेंट। और आयरन ऑक्साइड जो एक नई बिल्कुल न्यू थिंग बन रही है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। देन वी मूव टूवर्ड राइट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी उसके नंबर ऑफ एटम्स लिखे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसमें। नेक्स्ट यू नीड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट are present on each side of the equation. अब यहां पर रिएक्टेंट साइड पे आयरन एंड 1 एटम ऑफ आयरन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि जब भी आयरन ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी एक आयरन, तो क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड बना रहा है। जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स ऑफ आयरन और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हैं। अब ये एकदम से कहां से आ गए? 2, एक आयरन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ये कैसे हुआ? इसको भी देखते हैं। When you write out the number of product, you can see that the equation isn't balance. अब जब आप इसको देख रहे हैं तो इक्वेशन आपकी बैलेंस में नहीं है। ऑफ कोर्स उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? कोफिशिएंट्स यूज करने पड़ेंगे। अब कोफिशिएंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं? कोफिशिएंट इज अ होल नंबर मल्टीप्लायर होना चाहिए, यानी 2, 3, 4 होल नंबर्स में होने चाहिए ताकि वो इजीली बैलेंस हो जाए। Now move towards the example, that is on the product side we have 2 atoms of iron and 3 atoms of oxygen. Let's
टैकल आयरन फर्स्ट। सबसे पहले हम आयरन को देखेंगे। जब प्रोडक्ट साइड पे आयरन 2 है तो हमें सिर्फ आयरन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में कोफिशिएंट 2 लगाना होगा। जब हम वहां पर 2 लगा देंगे तो वो ऑलरेडी आयरन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए? अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑफ कोर्स आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 3 है। हमेशा हमें इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपस में ये दोनों सिमिलर आ जाएं। अब यहां पर क्या करेंगे? बैलेंस यहां पर आउट हो गया है। आयरन तो आपका बैलेंस में आ गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी इम्बैलेंस है। नाउ when first looking at the chemical equation, you must think that something like this works. While that balance out the iron atom, leaving 2 on each sides. Oxygen is still unbalanced. वही बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। That means we need to keep looking, यानी हमें दोबारा देखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोडक्ट में कोफिशिएंट लगाएंगे जो हम 2 से इजीली मल्टीप्लाई, हम स्टार्ट हमेशा कोई भी कोफिशिएंट करेंगे 2 से करेंगे। अब हम प्रोडक्ट में 2 लगाते हैं कोफिशिएंट में, तो हमारे पास आयरन कितने हो जाएंगे? 4 आयरन हो जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, यानी ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए। अब इजीली हम प्रोडक्ट्स में आकर ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं और आयरन को भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन जो हमारे पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ 2, इस पे हम 3 अप्लाई करेंगे। मैंने आपसे बोला कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 बनेगा, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 ज़ा 6 हैं। अगर 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन लाने हैं तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? कोफिशिएंट 3। अब जब 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसी तरह से आयरन यहाँ पर 4 है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में हमें 4 करने के लिए आराम से हम उस पर कोफिशिएंट 4 लगा सकते हैं। तो 4 आयरन रिएक्ट्स विथ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 आयरन ऑक्साइड। इस तरह से आपकी इक्वेशन सिंपली बैलेंस हो गई। सिर्फ 3 स्टेप्स आपने लेने हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इज कितने हमारे पास रिएक्टेंट क्या है एंड प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड थिंग कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, एंड देन वी पुट द कोफिशिएंट ऑन दैम। Now here another example is hydrogen gas react with oxygen gas to form water molecule. So reactant में हाइड्रोजन हमारे पास 2 क्वांटिटी में मौजूद है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास 4 क्वांटिटी में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कोफिशिएंट मौजूद है, लगा हुआ है इस इक्वेशन में। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, जब कुछ नहीं होता है तो 1 कंसीडर किया जाता है, 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस है, बट इम्बैलेंस क्या है? अनबैलेंस क्या चीज है? हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। अब फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन वी पुट द कोफिशिएंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। जहां पर कम होते हैं हम वहां पर ही कोफिशिएंट लगाते हैं। सो रिएक्टेंट में अगर हम लगाएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 2 ज़ा 4 एंड सेम प्रोडक्ट पे भी हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 मौजूद है, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई है? बैलेंस में आ गई है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूव टुवर्ड द होम असाइनमेंट्स। नाउ द असाइनमेंट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, कोफिशिएंट। The next question is
What is chemical reaction? Explain types of chemical reaction with examples. The third question is balance the following equation by inspection method. इन सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है एंड देन उसमें बताना है कि कौन सा मेथड यूज हुआ है. देन which of the following reaction is either a decomposition reaction or combustion reaction. इन 4 इक्वेशंस में आपको बताना है कि कौन सा combustion reaction है या decomposition reaction है. And then balance the equation and decide which one is single replacement reaction. ये 3 equations आपको दी हुई हैं, इसमें से आपको ये decide करना है कि which one is single replacement reaction. Now that's all for today. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.